Okay, so very welcome to all of you students. Now today we are going to move on to next type, which is continuation of fifth B. Fifth type 5 का continuation है. Fifth B heading लिख लो आप. Differentiation of one function with respect to the other function. ये heading लिख लीजिए आप. Differentiation of one function with respect to the other function. Okay, now I am going to explain you. So start writing down. लिखो. If u is equal to f of x and v is equal to g of x. U is equal to fx and v is equal to gx are differentiable functions of x are differentiable functions of x. Then if I want to u and v are differentiable functions of x, अगर वो x के differentiable function है, then if I want to find out du by dx means fx का derivative, so that will be nothing but f dash of x, and dv by dx will be nothing but equal to g dash of x हो जाएगा. u एक x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है. So if they are differentiable functions of x, so du by dx means it is f dash of x and dv by dx will be equal to g dash of x. And then, or you can write down therefore, if I want to write down du by dv, so du by dv कैसे मिलेगा students? So du by dv will be nothing but du by dx upon dv by dx. Heading क्या बोलता है? Differentiation of one function with respect to the other function. So I want to differentiate u with respect to v. So u एक x का differentiable function है, v भी differentiable function of x है. So du by dx is f dash of x, dv by dx is g dash of x. So du by dv कैसे मिलेगा? It is nothing but du by dx upon dv by dx. That same thing we have done it in parametric differentiation. ठीक है, बट वहां पे कोई दूसरा वेरिएबल होता था, थर्ड वेरिएबल, एक्सेप्ट फॉर एक्स एंड वाई, वहां पे टी थीटा ऐसे वेरिएबल्स होते थे. ओके, तो चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. सो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन. So now let us move on to the problems that are dependent on it. So under this type 5, ये हमारा है यूनिट नंबर 11. Write down यूनिट 11 का, this is क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन है. राइट डाउन. क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप लिखो. डिफरेंशिएट tan inverse of 2x upon 1 minus x square with respect to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. ठीक है, please make a note of this question. ठीक है students, so if this question is asked, this is going to carry 3 marks in exam. Differentiate tan inverse of 2x upon 1 minus x square with respect to cos inverse. Okay, so let's start writing down the solution. अच्छा, अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले first ये जो first function है, let us take it as u. See what is the theory says? If u is equal to fx and v is equal to gx, u and v they are functions of x. तो इसको हम u मान लेंगे और इसको हम v मान लेंगे. Always we'll do that. Write down let u be equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square and let v be equal to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. हम let कर लेंगे इसको u और इसको v, है ना. तो if I now read the question,
ये u हो गया और ये v हो गया। तो अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं आसान लैंग्वेज में, तो डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v हो गया। डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v मीन्स डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। डाउन टू फाइंड, ऐसा लिखो आप, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v मीन्स टू फाइंड du by dv। बट du by dv हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा स्टूडेंट। तो du by dv कैसे मिलेगा? तो इट इज du by dx अपॉन dv by dx, द रूल सेज। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन रहेगा, तो पहला वाला जो फंक्शन है उसको u लेट करना है आपको, और जो सेकंड वाला फंक्शन है उसको v लेट करना है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो इट इज नथिंग बट टू फाइंड du by dv। तो कैसे मिलेगा, du by dx अपॉन dv by dx। अभी हम एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। लेट अस फर्स्ट सॉल्व फॉर u एंड देन वी विल सॉल्व फॉर v। ओके, राइट डाउन। कंसिडर, ऐसा देखो आप नेक्स्ट लाइन पे, ये फाइंड टू फाइंड वाला पार्ट हो गया। नाउ लेट अस कंसिडर u। So what is u over here? So u is nothing but tan inverse of 1 minus x square है हमारा u। So we have first considered u. Now recollect, under unit 3 हमने substitution method use किया था ऐसे problems के लिए। So can anyone tell me what substitution can be done for this example? X Any is idea? tan. Absolutely correct. Let x is equal to tan theta. तो देखिए, put, you can write down, put x is equal to tan theta. Therefore, theta is nothing but tan inverse of x. x को हम tan theta डालेंगे तो theta will be tan inverse of x हो जाएगा। So therefore, what will this u become? So u will be nothing but equal to tan inverse of, ये हो जाएगा 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, and that is nothing but equal to, यहीं पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। So this is nothing but equal to tan inverse of, this is tan to theta, फॉर्मूला है ये tan to theta का, and according to the property of inverse function, what will be u? Tan inverse of tan to theta will be 2 theta। ठीक है ना, ये हमारा u का वर्किंग हो गया। ठीक है, सो नाउ हमें v का वर्किंग करना है, बट नाउ व्हाट विल डू, u का वर्किंग इज नॉट कंप्लीटली ओवर स्टूडेंट्स, हमें थीटा रिप्लेस करना पड़ेगा एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ इट। देयरफॉर आई विल जस्ट कंटिन्यू एट द टॉप। ओके, चलो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। आई यूज दिस स्पेस टू कंटिन्यू। so let us first replace theta। So this is further equal to 2 into theta will be replaced by tan inverse of x। Now we are supposed to differentiate u with respect to x। du by dx हमें find करना है students। So just find out du by dx and tell me what is du by dx further। आप मेरे को बताओ क्या मिला du by dx। Differentiate and tell me what is du by dx after this step। Yes, so what is du by dx? Anyone? du by dx क्या है हमारा? 1 plus x square. Absolutely, it is nothing but 2 by 1 plus x square। ठीक है, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिया, तो ये हमें हमारा du by dx मिल चुका है। ठीक है, so we have first considered u and by using method of substitution we have simplified, और ये प्रोसीजर हमने पहले किया हुआ है, earlier it is done already। okay, चलो अभी v को कंसिडर करते हैं quickly। now let us consider v। now let us consider v। so what is v? v is nothing but
cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. फटाफट मेरे को बताओ इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम? X tan theta. Absolutely correct. So we put x is equal to tan theta डालेंगे. X is equal to tan theta we will substitute. So therefore theta will be nothing but equal to tan inverse of x हो जाएगा. So therefore what will v be equal to? So v will be further equal to cos inverse of, this is going to become 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta हो जाएगा. So therefore v is nothing but further equal to cos inverse of cos to theta का फॉर्मूला है ये, and cos inverse of cos to theta is nothing but 2 theta. Due to I am running short of the space, वो सारा मैं सब एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है? So therefore v is further equal to 2 remaining same, theta will be replaced by tan inverse x. अब v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम निकालेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv by dx is nothing but 2 upon 1 plus x square. You know, इसके बाद हमें लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv by dx is nothing but 2 upon 1 plus x square. तो हमें हमारा du by dx मिल गया, हमें हमारा dv by dx मिल गया. Okay, so now let's continue in this box. यहाँ पे continue कर देता हूँ so that I can keep everything on the board. You can visualize. इस box में मैं final answer लिख देंगे. अभी हमें क्या find करना है? We had to find out du by dv. So we'll find out their ratio. तो लिखो, therefore du by dv is nothing but equal to du by dx upon dv by dx. Students, ठीक है ना? तो what is du by dx? तो du by dx is nothing but 2 upon 1 plus x square, and dv by dx is also 2 upon 1 plus x square. Therefore the final answer and du by dv is nothing but equal to 1. Problem is over. Okay, please make a note of this. ठीक है? तो डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर के जो प्रॉब्लम्स है, दे आर ऑलवेज टू बी डन दिस वे. आई होप आई एम क्लियर विद दिस प्रोसीजर एवरीवन. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. तो यहाँ से स्टार्ट किया था, ये u का सॉल्विंग है, ये v का सॉल्विंग है, ये du बाई dx, ये dv बाई dx, और यहाँ पर फाइनल आंसर. ठीक है, वो जरा थियरी पार्ट ऊपर लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल है, इसलिए वो थियरी पार्ट मैंने रब नहीं किया है, इसलिए थोड़ा जरा एकोमोडेट करके लिखना पड़ा मेरे को, बट ठीक है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ दिस. ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल of unit 11, and this is also from the exercise. This is from exercise 1.4. ठीक है, क्वेश्चन 4 का एग्जाम्पल नंबर 8 है ये. इट्स ऑल्सो अ टेक्सचुअल एग्जाम्पल. चलो, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. नाउ इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, दिस विल बी आस्क्ड फॉर 3 to 4 मार्क्स. 3 से 4 मार्क के लिए आएगा. मिनिमम 3, मैक्सिमम 4 मार्क. चलो, रेड ऑन सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. आपको पता है क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को u लेना है और सेकंड फंक्शन को v लेना है. ओके, सो रेड ऑन, लेट u बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 1 plus x square minus 1 by x, and v be equal to tan inverse of 2x root 1 minus x square upon 1 minus 2x square. तो ये u हो गया, ये पूरा फंक्शन, और ये v हो गया. तो अभी क्वेश्चन क्या हो गया, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v. तो क्या फाइंड करना है हमें, तो वी कैन राइट डाउन दिस वे. टू फाइंड
to find du by dv. तो du by dv कैसे मिलेगा? तो it is du by dx upon dv by dx. ठीक है, चलो let's start solving. Now let us first solve for u, है ना? So tell me what substitution will we do in u? X is equal to tan theta. Absolutely, x is equal to tan theta. चलो start doing. So we consider u for solving. पहले u consider करेंगे हम. So it is tan inverse of under root 1 plus x square minus 1 by x. So as rightly said, we have to put x is equal to tan theta. चलो अभी आप simplify करोगे, ठीक है? So let x is equal to tan theta. So therefore theta is nothing but equal to tan inverse of x. अभी फटाफट आप steps follow करो. तो u is equal to tan inverse of under the root. ये क्या हो जाएगा? x के जगह पे tan theta डालेंगे हम. So this is going to become 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta is nothing but sec square theta, and root of sec square theta will be sec theta. तो steps आप लिखो आपके reference के लिए. You write down the steps for your reference. I am waiting for your response. Okay, continue. I know you'll be able to do that. ये हो जाएगा 1 plus tan square theta minus 1 अपॉन में आएगा tan theta. ठीक है, अब मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ. नेक्स्ट स्टेप, यू कंटिन्यू विथ योर स्टेप वाइज का प्रोसीजर. सो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ, दिस इज गोइंग टू बिकम sec theta minus 1 by tan theta. चलो अभी इनको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करो. कन्वर्ट sec theta as well as tan theta in form of sin and cos. ये u का वर्किंग है, यहाँ पर हम फिर v का वर्किंग करेंगे. विल डू v का वर्किंग ओवर हियर, और उसके बाद बाकी का वर्किंग फिर यहाँ पे करेंगे हम. बाइफरकेट कर देता हूँ. चलो, तो sec is nothing but 1 by cos and tan is nothing but sin by cos. So this will be further equal to, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें. So this will be further equal to, ये हो जाएगा tan inverse of, this is nothing but, no it won't be accommodated over here. Let me write down. नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ मैं. ओके, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो u will be further equal to tan inverse of, ये है 1 by cos theta minus 1 upon tan theta is nothing but sin theta by cos theta. ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट. अभी एलसीएम लेके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो दिस इज फर्दर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 1 minus cos theta upon sin theta. चलो, नाउ यूज द फॉर्मूला ऑफ 1 minus cos theta and use the formula of sin theta. तो u को मैं आगे सिंप्लीफाई कर दूंगा वहां पे. v का वर्किंग हम यहाँ पर करेंगे. Right now we are doing the working for u. So just tell me, u will be further equal to, okay, u will be further equal to what? So it will be tan inverse of 1 minus cos theta is what? So it is 2 sin square theta by 2, and sin theta is nothing but 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 होता है. Check out, this is what you will be having. ये स्टेप के बाद मैंने वहां पे लिखा है नेक्स्ट स्टेप. So therefore u will be further equal to tan inverse of, ये हो जाएगा कैंसिलेशन के बाद tan theta by 2, 2 गया, एक sin theta by 2 गया, पावर कम हो गया. तो tan inverse of tan theta by 2, तो u is nothing but theta by 2, but theta gets replaced. Theta gets replaced by tan inverse x. ठीक है ना? तो tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, ये अपना u है.
तो du by dx क्या मिलेगा? तो व्हाट इज du by dx? दैट इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये हमारा du by dx मिल गया हमें। आई जस्ट रिपीट, ये u का वर्किंग है और यहाँ पे कंटिन्यू होके ये du by dx मिल गया। नाउ चलो लेट अस क्विकली डू द वर्किंग फॉर v। ये v का वर्किंग का जगह छोड़ा है मैंने ऑलरेडी, so let us do the working for v। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होके ये इधर गया और वो उधर, अभी हम v का वर्किंग करेंगे। तो जस्ट टेल मी व्हाट सब्स्टिट्यूशन डू वी डू इन v? sin theta. Q is equal to sin. यस करेक्ट, एब्सोल्युटली, sin थीटा बराबर है। तो v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर है हमारे पास। v का वर्किंग कर रहे हैं, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर। तो वी पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा डालेंगे, तो यहाँ पे थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ x। नाउ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैं थोड़े स्टेप्स जो है वो स्किप कर रहा हूँ, तो आप लिखो वी हैव डन दिस अर्लियर। ये मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। यूनिट 3 में हमने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा था ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, वहां पे हमने ये पार्ट किया हुआ है। ओके, तो व्हाट इज दिस गोइंग टू बिकम 2 sin थीटा इनटू अंडर रूट, this is going to become 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta, and root of cos square theta is going to become cos theta. तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 2 sin theta cos theta। डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा स्टूडेंट? तो डिनोमिनेटर में इट इज 1 minus 2 sin square theta। x के जगह पे sin theta डाला हमने यहाँ पे, तो ये मैंने थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व किया है। नाउ वी ऑल नो दैट this will be further equal to tan inverse of numerator will become sin to theta, and what will denominator become? Anyone? Cos to theta. Absolutely, absolutely, very good. It will become nothing but cos to theta का फॉर्मूला है 1 minus 2 sin square theta, and we all know that sin to theta upon cos to theta is nothing but tan to theta, and by the property of inverse function tan inverse of tan to theta is 2 theta, and therefore now we replace v। अच्छा ये तो चलो ठीक है, यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। therefore v is equal to 2 into theta will be replaced by sin inverse of x, and therefore now dv by dx डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv by dx क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा? तो इट विल बी नथिंग बट 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पहले हमारा du by dx पहले ही मिल चुका था, dv by dx हमने फाइंड कर लिया, बट हमें क्या चाहिए? वी वांट du by dv, है ना। तो लिखो इसके बाद, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये जब सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन का। दिस इज द सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। एक्चुअली वहां पे स्पेस नहीं था, आई हैड टू गो इक्वली। तो 1 के बाद 2 वहां पे है, u का कंटिन्यूशन वहां पे है, फिर v का कंटिन्यूशन, दिस इज द थर्ड पार्ट। 2 के बाद फिर हमने v स्टार्ट किया, du by dx मिलने के बाद dv by dx। अभी हम क्या कर रहे हैं? नाउ वी आर फाइनली राइटिंग डाउन, राइट डाउन। Therefore, du by dv is nothing but equal to du by dx upon dv by dx। ठीक है, तो what is du by dx students? तो du by dx is nothing but 1 upon 2 bracket 1 plus x square upon dv by dx is nothing but 2 upon under root of 1 minus x square। अभी हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं, तो फाइनल आंसर एंड अवर du by dv इज नथिंग बट इक्वल टू, ये रूट वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो इट इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन
ये 2 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर is the final answer and our du by dv. That's it. Problem is over. Please make a note of this. ठीक है ना? तो जरा थर्ड पार्ट के बाद ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया. I have divided into 4 parts. थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, but ठीक है, doesn't matter. चलो, please make a note of this. This is our final answer and du by dv. थोड़ा लेंदियर एग्जाम्पल है, इसलिए 4 मार्क के लिए आ सकता है ये. तो सी यूनिट 3 में जो हमने किया है, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, यूनिट 3 में जो मैंने आपको सिखाया है, दैट वी आर यूजिंग इट ओवर हियर. So please make a note of this. Okay. Now what changes can be made? Let me explain. अभी हमने दोनों इनवर्स फंक्शंस लिए और दोनों प्रॉब्लम्स में सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ा, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ा. बट नाउ इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि जो बाकी के क्वेश्चंस है उसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा. Like, let me show you some examples. Just have a look. Okay. Now see, these changes can be made at any point of time. तो आप बोल नहीं सकते अरे आशीष सर ने तो हमको ये करवाया ही नहीं. You can say that statement. Like for example, differentiate. Do not write down. Just pay attention on this. I want everyone's attention. Say for example, अगर मैं लिख लूँ differentiate log of 5x plus 1, ठीक है, to the base, say for example 5 लिख देता हूँ. Differentiate log of 5x plus 1 to the base 5 with respect to 5 raised to 2x. ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया. तो differentiate one function with respect to the other function. अच्छा, अभी ये एग्जांपल आएगा, this won't carry 3 marks. If this problem something like this comes, it may carry 1 or 2 marks. हाँ, तो ऐसा क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया. चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं. फिर ऐसा हो सकता है differentiate, say for example maybe sin cube 2x, ठीक है, with respect to say maybe cos square 3x. ऐसा भी दे सकते हैं वो. differentiate this function with respect to the other function. कोई भी any inverse trigonometric function can be given logarithmic exponential combination. हो सकता है log के साथ trigonometry दे देंगे, trigonometry के साथ exponential, exponential के साथ logarithmic, logarithmic के साथ inverse. Combination of examples can be created in this. अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं. Like for example, if I give you differentiate अगर मुझे लिखना है तो चलो एक एग्जांपल लिख लेता हूँ. सपोज यहाँ पे लिखा मैंने tan इनवर्स ऑफ a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस a इंटू एक्स. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू से मैंने लिख दिया tan इनवर्स ऑफ x लिख दिया. अब देखो जितने भी एग्जांपल है सब में प्रोसीजर सेम है. इनको हम u कंसिडर करेंगे और इनको हम v कंसिडर करेंगे एंड देन वी सॉल्व इट. सो दे आर ऑल फॉर ऑलमोस्ट 1 to 2 मार्क्स. ये भी तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है एंड दिस आल्सो मे बी फॉर 2 मार्क्स. ओके, नाउ कैन एनीवन टेल मी इन दिस. चलो ये तो दोनों सिंपल फंक्शंस है, तो ये तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा. नाउ सी ओवर हियर, तो कैन एनीवन टेल मी हाउ डू वी सॉल्व दिस tan इनवर्स ऑफ ये वाले एग्जांपल में, थर्ड एग्जांपल में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एनीवन, एनी आइडिया? Would x equals to 8 and no, x is equal to 8 tan theta नहीं डालना है. something else, anyone? और कोई दूसरा मेथड? नेवर माइंड, आंसर रॉन्ग हो गया तो भी चलेगा, आप बताओ मेरे को. tan x minus tan inverse x minus tan inverse. एब्सोल्युटली, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड ऋग्वेदा. अभी यहाँ पे क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम है हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करना है. जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन ही है. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी प्रोसीजर आपको पता है. इसको यू वी लेके फिर प्रॉपरली सॉल्व करना है. तो इसको अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ऐसा हो जाएगा. और फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे. इसका क्या मीनिंग हुआ कि इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई करना है. वी हैव टू मेक यूज ऑफ द
प्रॉपर्टी ओवर हियर, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन और फिर डेरिवेटिव और फिर v का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं और फिर दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज जरूरी नहीं कि दोनों में सब्स्टिट्यूशन है, ऐसा भी केस बन सकता है, लाइक दे माइट गिव यू दिस वे आल्सो, डिफरेंशिएट, ऐसा भी दे सकते हैं, डिफरेंशिएट, सपोज एक फंक्शन दे दिया आपको साइन इनवर्स ऑफ 3x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन दे दिया साइन इनवर्स ऑफ 3x minus 4x cube. If this question is asked, this may carry 2 to 3 marks. 2 to 3 marks के लिए पूछ सकता है वो। अभी सपोज ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 3x, तो इसको हम u कंसिडर करेंगे और इसको v कंसिडर करेंगे। नाउ इसका तो डायरेक्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ fx का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस। नाउ कैन यू टेल मी प्रोसीजर फॉर दिस वन? x is equal to sin theta. एब्सोल्युटली, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, तो वी आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट नहीं फाइंड करने वाले हैं, तो ये साइन 3 थीटा एंड ऑल दैट प्रोसीजर विल बी इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो व्हाट आई वांट टू शो यू, जरूरी नहीं है कि जैसे हमने दो एग्जांपल्स किए दोनों में सब्स्टिट्यूशन था, बराबर है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि दोनों में सब्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे इसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करके उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ सम एग्जांपल्स व्हिच कैन बी क्रिएटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड प्लीज डू सॉल्व इट एज एन होमवर्क सेक्शन। चलो प्लीज नोट डाउन, ये आपका होमवर्क है। आई एम क्लियर विद द पिक्चर, मेरे को क्या समझाना था आपको क्लियर है ना एवरीवन? Yes. ओके, तो ये आपका होमवर्क है आज के लिए, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, ये कॉम्बिनेशन इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, साइन इनवर्स के साथ ये वाला पार्ट, इसके साथ ये, तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं कि सब्स्टिट्यूशन। फंडा याद रखो आप, फर्स्ट वाले फंक्शंस है जितने भी उनको सबको u लेना है, सेकंड वाले जितने भी फंक्शंस है सबको v लेना है, एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब सारे केस में अपने को du by dv ही निकालना है। So it is nothing but du by dx upon dv by dx. Picture is very clear, you know. Picture अपन कैसे मूवी देखते हैं तो अपने को आगे का स्टोरी मालूम पड़ जाता है ना, अरे हाँ अभी हीरो ऐसा करने वाला है। क्यों मालूम पड़ जाता है? क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते हैं। तो बस वैसे ही दिमाग अपने को यहाँ पे लगाना है कि अरे हाँ सेम स्टोरी कंटिन्यू हो रहा है, यू नो, मालूम पड़ जाता है क्या करना है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस।